Hello everyone, welcome to our new topic, that is queues in C++. In previous video we have covered what is stacks and operations of stack and what is queue. Today we will see what are the operations performed in queue. Before that we will do a overview on queue. So first, what is the definition? So it is just like a stack. A stack is also a linear data structure and queue is also a linear data structure. But in queue we will do first in first out, and in stack we will do last in first out, that is LIFO, and queue is called FIFO. So stack is a data structure that provides temporary storage of data in such a way that the element stored first will be retrieved first. So this method is called FIFO, first in first out. Example: in real life, we think of a queue as a queue of vehicles waiting at the petrol pump, people waiting at bus stop for the bus, etc. The first person to enter the queue is the first one to leave the queue. Similarly, the last person join the queue will be the last person to leave the queue. मीन्स किसी में अगर आप स्कूल का देखें, स्कूल में बच्चे लाइन लग के जा रहे हैं तो जो पहला बच्चा क्यू में लगा वो फर्स्ट क्लास में इन करेगा. सेम बस स्टॉप में लाइन लगे हुए हैं, जो फर्स्ट पर्सन है वो बस आने पर फर्स्ट में इन करेगा. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू इन विच द लास्ट पर्सन विल ज्वाइन द क्यू, द लास्ट पर्सन टू लीव द क्यू. जो लास्ट होगा वही लास्ट में लीव करेगा. सो ऑपरेशंस अब क्या क्या है क्यू के साथ. अ क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. It is controlled by two operations. So today's topic is operations on queue. तो queues के साथ क्या क्या operations है? Insertion है और deletion है. So insertion operation takes place from the rear end and of the queue, and the deletion takes place from the front end of the queue. So ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इंसर्शन कहाँ होता है, रेयर एंड पर, और डिलीशन कहाँ होता है, वो फ्रंट एंड, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. So insertion operation adds an element to the queue. Deletion operation removes the element from the queue. इंसर्शन का मतलब हुआ ऐड करना और डिलीशन का मतलब हुआ रिमूव करना. तो रिमूव जो एडिशन जो होता है वो होता है रेयर एंड से, और डिलीशन जो होता है वो होता है फ्रंट एंड से. सो डिलीशन ऑपरेशन रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द क्यू. सो देयर आर टू वेरिएबल, फ्रंट एंड रियर. The front points to the beginning of the field queue and takes care of the deletion operation, and rear points to the end of the queue and takes care of insertion operation. This line is important line. तो फ्रंट और रेयर दो आपका वेरिएबल्स होगा, जिसमें फ्रंट पॉइंट करेगा बिगनिंग को और वो डिलीशन के लिए होगा. ठीक है, स्टार्टिंग में क्योंकि जो आगे रहेगा वही डिलीट पहले होगा, इसलिए फ्रंट जो होगा वो डिलीशन के लिए होगा. इससे याद रखेंगे FIFO कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO कॉन्सेप्ट. और रेयर पॉइंट जो होगा वो एंड ऑफ द क्यू होगा, दैट इज फॉर इंसर्शन ऑपरेशन. So these are two operations implemented in FIFO method, first in first out method. Now implementation of queue. Queue can be implemented in two ways, as an array and as a linked list. दो तरह से आपका होगा, array और linked list. Now queue as an array. An array implemented of queues are as array to store the data. So an integer type variable usually called front, which points to the beginning of the array, and integer variable rear, which points to the end to field and array. So ये आपका rear है, ये आपका front है. So फ्रंट से आपका ये इंसर्शन हो रहा है
और यहाँ से फिर फ्रंट से आपका डिलीशन होगा और रियर से आपका इंसर्शन हो रहा है। सो इंसर्शन ऑपरेशन, initially when the queue is empty, the front and rear have any integer value other than any valid index number of an array. Let front equal to -1, rear equal to -1. The first element in the empty queue goes to 0th position of the array and both front and rear are initialized to the value 0. So first जब हम लोग एंट्री करेंगे तो उसको फ्रंट और रियर दोनों का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगा. So after every insertion operation increase rear by 1, +1 करते जाएंगे rear में, and insert new data at particular position. So arrays are fixed in length, so element cannot be inserted beyond the maximum size of the array. Pushing data beyond the maximum size of the queue, when rear equal to max size -1, the result is data overflow. Means data जो है array का size fix है, तो उसमें आप जितना साइज है 0 से स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम साइज -1 एंट्री होगा. अगर उससे ज्यादा एंट्री करेंगे तो एक आपको मैसेज डिस्प्ले करने पड़ेगा डेटा ओवरफ्लो. So see this picture how data is inserted 0 से suppose 0 1 2 3 empty queue है, दोनों आपका q इक्वल टू -1 फ्रंट इक्वल टू -1. पहले हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं 0 पोजीशन में 10, insert 10 front 0 rear 0. insert 20 क्या हो गया, front 0 हो गया और rear 1 हो गया. insert 30 अगर है 30 insert किए तो front क्या हो गया 0. देखिए front is always 0, ये हमारा स्टार्टिंग है. front 0 और rear हो गया 2. next 40 insert किए, अगर insert 40 किए तो front 0 and rear is 3. अगर इसके बाद कुछ इंसर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ओवरफ्लो बिकॉज क्यू इज फुल. क्यू हमारा बना हुआ है 4 का जो कि 0 से 3 तक का है और एंट्री जो होगा वो आपका फ्रंट इज ऑलवेज 0. सी हियर फ्रंट इज ऑलवेज 0 क्योंकि डिलीशन जो होगा वो फ्रंट से होगा और जो रियर होगा वो आपका इंसर्शन होता है तो रियर बढ़ता जाएगा. सो लास्ट जो है जब आपका डेटा फुल हो गया तो आपको लिखना पड़ेगा इंसर्ट 50. नेक्स्ट डेटा जो इंसर्ट हुआ रिजल्ट इन ओवरफ्लो बिकॉज क्यू इज फुल. नाउ वी विल सी द डिलीट ऑपरेशन. The delete operation deletes the very first item from the queue, that is क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए एक बार, that is front क्योंकि ये front से ही आपका deletion होगा. So any attempt to delete an element from the empty queue when front plus rear equal to -1, the result in data overflow condition. So each time the deletion operation is performed, the front variable is decrement by 1. When there is only one element in the queue, the deletion operation of the elements make the queue empty and both front and rear will assign to the value -1. See how it is implemented. ये मेरा स्टैक जब फुल था, क्यू फुल हो गया था 10 20 30 40, फ्रंट 0 और रियर था 3. तो डिलीट करना होगा तो हमेशा जो होगा वो फ्रंट से डिलीट होगा. तो पहला आइटम मेरा 10 रिमूव हुआ, डिलीट हुआ तो फ्रंट हो गया 1 और रियर हो गया 3. नेक्स्ट आइटम जो डिलीट होगा वो होगा 20 डिलीट हो गया, 20 डिलीट होगा, यहाँ पर इसमें 10 डिलीट हुआ, यहाँ 20 डिलीट होगा. फ्रंट इक्वल टू 2, रेयर इक्वल टू 3. देन 40 होगा तो एलिमेंट होगा फ्रंट 3 रेयर 3. सो डिलीट एन एलिमेंट फ्रंट, तब उसके बाद जब डिलीट हो जाएगा एलिमेंट तो -1 फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रेयर इक्वल टू -1, इट इज एम्प्टी. सो डिलीट एन आइटम
element will be result in data overflow. Now see, this is the program how it is implemented in C++. Header files, class का नाम है Q, int data that is an array, और दो मेरा front और rear है, दो फंक्शन के लिए. पब्लिक में एक Q फंक्शन है जिसमें पब्लिक में ये दिस इज द कंस्ट्रक्टर, फ्रंट इक्वल टू -1, रेयर इक्वल टू -1, और दो फंक्शन है इंसर्शन एंड डिलीशन. इंसर्ट एंड डिलीशन. इंसर्ट में इफ रेयर डबल इक्वल टू साइज -1 देन क्यू इज फुल. ठीक है, और ये मैसेज देंगे. अगर नहीं है तो इंसर्ट करना. अगर साइज -1 मतलब जो साइज दिया हुआ है 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए साइज -1 हो गया है तो क्यू फुल मैसेज आपको देना है. अगर नहीं है, अगर रियर इक्वल टू -1 है तो रियर प्लस प्लस फ्रंट प्लस प्लस, एल्स रियर प्लस प्लस सी आउट इंटर डेटा. जो डेटा एंटर करेंगे वो रियर में स्टोर होता जाएगा. सो दिस function is for inserting data. Now for deletion, front equal to double equal to -1. अगर front -1 है तो q is empty, मतलब उसमें कोई डेटा नहीं है और रिटर्न हो जाएंगे. नहीं तो डिलीट फ्रंट डेटा, फ्रंट जो है वो डिलीट करेंगे. और अगर इफ फ्रंट डबल इक्वल टू रेयर, फ्रंट और रेयर एक हो गया है तो फ्रंट इक्वल टू -1, रेयर इक्वल टू -1, एल्स फ्रंट प्लस प्लस. और डिस्प्ले करना है अगर आपको क्यू में क्या क्या एलिमेंट्स है तो एक लूप चलाएंगे. फॉर i इक्वल टू फ्रंट, i लेस देन इक्वल टू रेयर, i प्लस प्लस, और सी आउट डेटा रेयर. सो अब उसके बाद मेन भी लिखना है. अगर मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है तो एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे क्यू, और एक ले लेंगे हम मेनू ड्रिवन के लिए. इंसर्शन है पहला, फर्स्ट चॉइस इंसर्शन, केस 1 है चॉइस तो इंसर्ट में जाइए. सेकंड है केस 2, अगर चॉइस 2 देते हैं तो डिलीशन में जाइए, और 3 देते हैं तो डिस्प्ले में जाइए. सो दिस इज द C++ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द क्यू. ऑपरेशंस ऑफ क्यू सेम. एक दूसरा प्रोग्राम के थ्रू जिसमें नेम डाला गया है, एक स्ट्रिंग, डेटा साइज है 4, और क्यू है कंस्ट्रक्टर, फ्रंट इक्वल टू -1, रेयर इक्वल टू -1, इंसर्ट किए हैं और डिलीट दो ऑपरेशंस है. सो क्यू इंसर्ट, अगर साइज -1 है तो क्यू फुल, और अगर -1 है फ्रंट प्लस प्लस, रेयर प्लस प्लस, एल्स रेयर प्लस प्लस, इंटर डेटा, डेटा करेंगे. सी इन डेटा, सी इन आप डेटा इन लेंगे और उसको नेम है डेटा नेम, उसको एंट्री करेंगे. फिर डिलीशन का प्रोसेस है. जो डेटा आएगा वो रेयर में आएगा. दो डेटा है, इंट आइटम नंबर INO और दूसरा है नेम, तो दोनों एंट्री करेंगे. फिर डिलीशन के लिए अगर फ्रंट डबल इक्वल टू -1 है तो क्यू इज एम्प्टी, और अगर फिर सी आउट करना है, सी आउट फ्रंट डॉट INO is deleted, or if front double equal to rear, front equal to -1, rear equal to -1, else front plus plus delete हो जाएगा. डिस्प्ले करने के लिए सेम, int I equal to front, I less than equal to rear, I plus plus, C out data rear dot INO, ये वाला जो दो डेटा आप लिए थे, और C out data rear dot name. सो अब मेन में आप मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप सी आउट कर दीजिए इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले, और चॉइस 1 है तो इंसर्ट वाला में कीजिए, इंसर्ट को एग्जीक्यूट कीजिए. 2 है तो डिलीशन को कीजिए. 3 है तो डिस्प्ले को कीजिए. सो दिस इज द प्रोग्राम implementation of queue in C++. Now we will see some disadvantages of normal queue. The queue as an array suffers from a major drawback. An array are fixed in size. Elements cannot be inserted beyond the maximum size of the array. Even through the reality, there might be empty slots of beginning of the queue. So आप देखिएगा कि क्यू में कुछ ब्लैंक भी रह जाता है, तो इससे आपका क्यू इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होता है. दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ क्यू.
So next video we will cover some more operations of Q. That's all. Thank you. Bye bye.